ملک اور برادر اسلامی ملک بھی ہے، تو ایک طرف وہ تھا، دوسری طرف امریکہ اسرائیل نے اسی ایران کو نشانہ بنایا ہوا تھا، اور اس تنازع میں بالواسطہ طور پر مسلمان ممالک جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی انداز سے اس میں شریک تھی۔ تو پاکستان نے یہاں بہت سوچ سمجھ کر پاکستان کی قیادت نے اپنے لیے ایک اس تاریخی راستے پر کاربند رہنے کا ایک فیصلہ کیا اور چنا، اور یہیں سے پاکستان کے ایک نئے اور تاریخی رول اور ایک ڈیفائننگ موومنٹس جو ہم کہتے ہیں ان کا آغاز ہو گیا تھا۔ اچھا، تو یعنی پاکستان نے اپنی تاریخ کے ساتھ ساتھ حال کی جو ایک زمینی حقائق ہے ان کو بھی سامنے رکھا، اور پاکستان ایک پیس لونگ کنٹری کے طور پر، پیس بروکر ملک کے طور پر ایمرج کرتا چلا گیا اس خلیج کے بحران میں، وگرنہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی تھی یا جس کے لیے پاکستان پر دباؤ بھی محسوس کیا جا رہا تھا کہ پاکستان ایک لائن لے کر یا تو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا یا کوئی اور اس میں اس تنازع میں فریق اور شریک بننے کی کوئی اور شکل و صورت نظر آئے گی، لیکن پاکستان نے بہت کمال مہارت کے ساتھ اس ساری صورتحال میں اپنے لیے اول و آخر جو کردار پسند کیا وہ ایک امن کے پیغمبر ملک کا کردار تھا، اور اس کا اعتراف نہ صرف جنگ کے دونوں جو فریق ہیں وہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہ صرف امریکہ کے صدر بار بار پاکستان کی قیادت کا نام لے کر حوالہ اور پاکستان کا نام لے کر اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں، اظہار تشکر کر رہے ہیں، شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یہاں ایک رول ادا کیا۔ انہیں بھی نظر آتا ہے کہ اگر وہ اس تصادم میں دھنس جاتے تو یہ ایک دلدل ان کے لیے ہوتی، ایک برمودا ٹرائنگل میں ان کا پہلا قدم ثابت ہوتا، اور پھر ایسے برمودا ٹرائنگل میں پھر بڑے بڑے جو ٹائٹینک طرح کے جو جہاز ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ انہیں بھی احساس تھا کہ پاکستان نے ایک بہرحال ایک گرے ایریا بنائے رکھا فریقین کے درمیان، تو اسی لیے جو امریکہ کی قیادت ہے وہ مسلسل پاکستان کے کردار کا اعتراف کرتی نظر آ رہی ہے ہمیں، لیکن اسرائیل کو تو ایک ازلی بیر ہے پاکستان کے ساتھ، اور ایک پاکستان مسلم دنیا کے ساتھ، مسلم امہ کے ساتھ، تو اس سے نہ تو کسی خیر کی توقع رکھنی چاہیے، نہ اس کی ہمدردی اور اس کی تحسین کو ہمیں اپنے لیے کوئی میڈل کوئی تمغہ بنانا چاہیے۔ تو لیکن بہرحال امریکہ کی طرف سے پاکستان کی تحسین اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستان نے ایک طرف بہت اچھا رول متعین کیا، وہیں ساتھ ساتھ ایران جو وکٹم بھی ہے اور اس جنگ کا ایک اہم فریق بھی ہے، اس کی طرف سے بھی پاکستان کی قیادت کا بھی وقتاً فوقتاً شکریہ ادا کیا گیا، عوامی سطح پر بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا، نغمات لکھے گئے پاکستان کے کو خراج تحسین پر مبنی، اور ہر مرحلے پر پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا گیا۔ آج ایران دنیا میں کسی اور ملک پر اس طرح اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جس طرح وہ پاکستان کو اس معاملے میں درمیان میں رکھنا چاہتا ہے، امن دوست ملک کے طور پر، امن کے ایک پیامبر ملک کے طور پر، اور ایک سہولت کار ملک کے طور پر پاکستان کو رکھنا چاہتا ہے، اور وہ بار بار ایرانی قیادت جو ہے وہ پاکستان کے دورے کر رہی ہے، پاکستان کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے، پاکستان کی خدمات کا اور پاکستان کی پوزیشن کا وہ اعتراف کر رہی ہے۔ تو یہ ایک تاریخی کردار ہے، یہ پاکستان کے ایک نئے رول کا میں سمجھتا ہوں اس ایٹلس پر، اس کرۂ ارض پر ایک آغاز ہو رہا ہے، اور پاکستان نے اپنی طاقت کو، اپنی جو لوکیشن ہے، اپنی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، اس نے اپنے لیے اس کو مشکلات کا باعث نہیں بنایا، بلکہ اس جو پوٹینشل ہے اس کو اپنی طاقت بنایا، اور آج وہ ایران کی بھی ضرورت ہے، آج امریکہ کی بھی ضرورت ہے، دونوں چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے بیچ میں ایک پل کا کردار ادا کرتا رہے، اور دونوں کا پاکستان پر اعتماد ہے، اور دونوں میں آج گو کہ امریکہ اور ایران کے روابط کٹ چکے ہیں بظاہر، لیکن آج بھی پاکستان کے ذریعے دونوں کے درمیان نام و پیام جاری ہے۔ یہ پاکستان کا
तारीख में पहली बार इस तरह का किरदार अदा कर रहा। अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग के जमाने में जब बहुत ज्यादा गलतफहमियां बढ़ गई थी और चीन को अमेरिका जो है वो सोवियत यूनियन की ऐनक से उस मुहद्दबत से देख रहा था, तो बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने चीन की क़यादत और अमेरिका के दरमियान एक रवाबत पैदा किए थे और अपने मुल्क में उनके दरमियान एक राब्ता कराया था, जिसके बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुक होल और उस जहनियत के असरात की जद में नहीं रहे, बल्कि दोनों मुल्कों ने एक तरह से ताउन का एक सिलसिला शुरू किया। तो पाकिस्तान को जब भी आजादाना तौर पर मौका मिला है तो उसने कौमों के दरमियान आलमी अमन के लिए एक जिम्मेदार मुल्क का किरदार अदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उनके साथ तो पाकिस्तान का एक रोल बनता ही है एक आलमी जिम्मेदारी के तौर पर, लेकिन उससे हटकर भी अपने तौर पर भी पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसका जो एक पैरामीटर्स में यही बात है कि पाकिस्तान ने एक सुलहजू मुल्क का किरदार अदा करना है। जब भी कौमों के दरमियान एक फसाद की कैफियत पैदा हो जाए, गलतफहमियां बढ़ जाए, तो पाकिस्तान ने अमन को एक पहल करनी है अमन पसंद मुल्क के तौर पर, और अमन का जो मौका है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको जाया नहीं होने देना। तो आज भी पाकिस्तान उसी रास्ते कारबंद है और पाकिस्तान ने वही रोल खलीज की जंग में अदा किया है और इसका एतराफ दोनों फरीक जो है वो खुले दिल के साथ कर रहे हैं। जी भाई साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह आपने पाकिस्तान के किरदार को बड़ी तफसील के साथ और बारीक बीनी से उसकी तफसीलात आपने हमारे सामने तक रखी है, बिल्कुल इसी तरह ही है। और पाकिस्तान का जो किरदार है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आलमी अमन के लिए एक बड़ा ही अहम है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं थोड़ा सा अगर देखें तो जाहिर है इस अगर ये अमन कायम हो जाता है तो इसका फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को है और खुद हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को ज्यादा फायदा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है इस जो आजकल जो अमन की कोशिशें हैं इनको भी कोई मुस्बत अंदाज से भारत की तरफ से नहीं बयान आ रहा है। वो भी पाकिस्तान को उसके लीडरशिप जो है, उसका मीडिया जो है और उसकी हुकूमत की तरफ से जो बयान कभी कभी आ भी जाता है तो वो भी जलता भुना हुआ बयान आता है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता या पाकिस्तान को मतलब वो इस तरह। ये किरदार क्या आपके होना चाहिए ऐसा? कम से कम इस मौके के ऊपर भारत को तो पॉजिटिव कोई रवैया अख्तियार करना चाहिए था कम से कम पाकिस्तान के बारे में, क्या कहना? असल में भारत का जो अलमिया है जी वो कहतुर रिजाल है, बढ़ता हुआ कहतुर रिजाल है। और वहाँ अलमिया ये है कि मुल्क बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज्यादा है, रकबा बहुत ज्यादा है, इंटेलेक्ट जो लेवल है वो भी खासा बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ की जो फैसला साजी है उसमें छोटे लोग ऊपर आ गए हैं। हादसात से जमाना के नतीजे में, हालात के नतीजे में या एक नफरत अंगेज जहनियत के नतीजे में, उस जहनियत की जिसको बरसों जिसकी आबियारी की जाती रही, बिलाखिर वो एक फसल बनकर आ गई और उसके नतीजे में फिर मेरिट नहीं रहा। फिर जैसे जो जितना ज्यादा नफरत फैलाने का माहिर था वही ऊपर आता चला गया, जिसकी नामाए अमल में सिर्फ इंसानियत कुछ इकदामात थे, सिर्फ नफरत थी, सिर्फ माशरे को तकसीम करना था, सोसाइटी को जात पात मजहब और तारीखी हवालों की बुनियाद पर उसको बांटना था। तो वही जो लोग जब ऊपर आएंगे तो फिर ऐसे ही हालात होते हैं जैसे आज भारत में पैदा हो रहे हैं। भारत इसी अपनी आग में जल रहा है, अपने ही इन्हीं फैसलों का और अपनी ही क़यादत की नालायकियों का, उनकी तासुब का आज वो खमियाजा भुगत रहा है। कि एक तरफ वो मुल्क है ईरान कि जिससे बहुत से मौके पर अगर हम 90 की दहाई से अनवर्ड अगर हम चीजों को देखें तो हमें नजर आता है कि ईरान कई जगह डिप्लोमेटिक बेल आउट देता हुआ हमें भारत को नजर आता है, भारत की मदद करता हुआ नजर आता है। कश्मीर के हवाले से भी अगर हम कहें तो एक दो मौके पे डिप्लोमेटिक एक हजीमत से
भारत को अब ईरान ने बचाने की कोशिश की। फिर चाबहार जो बंदरगाह है उसमें जो भारत को स्पेस मिली और उसने फिर गवादर के मुतबादल के तौर पर एक मतवाजी के तौर पर एक नया वहां ठिकाना और अड्डा बनाने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद जब ईरान पर मुश्किल वक्त आया तो भारत की जो क़यादत है, यही छोटेपन की का शिकार क़यादत, छोटे जहन का शिकार क़यादत, यही जाके इसराइल में ढाई मौज़े का खेज अंदाज में जफ्फियां डालती हुई हमें नजर आती है। फादरलैंड और मदरलैंड और ये इस तरह की अजीब व गरीब किस्म की इस्तिलाहात और रिश्तेदारियां कायम करती हुई हमें नजर आ रही है। सिर्फ एक जहनी तौर पर एक तासुब का शिकार होकर, सिर्फ ये कि फलस्तीनियों की जिद में, ईरान की जिद में, मुस्लिम दुनिया की जिद में, पाकिस्तान की जिद में वो इस तरह की छोटी छोटी हरकतों का मुजाहिरा कर रही है। और यहाँ तक कि ईरान की जो क़यादत है उसको अमेरिका ने निशाना बनाया। तो 2 बोल तक भारत की क़यादत नहीं भर सकी ईरान की हिमायत में, और इस इक़दाम की मजम्मत में पाकिस्तान ने खुलकर एक स्टैंड लिया इस हवाले से। लेकिन भारत की तरफ से इस पर मुकम्मल खामोशी रही। यहाँ तक कि जो उनके मरीन से जो मशक़ें करने के लिए भारत में आए थे तो उनको जब निशाना बनाया गया तो उस पर भी भारत ने उफ तक नहीं की कि ये एक गैर सफारती और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की दुनिया में ये एक नाकाबिल कबूल कदम था, तो उस पर भी भारत खामोश रहा। तो भारत खुद एक हसद और बदले की आग में, ये जो भारत की छोटे जहन की जो क़यादत है ये आग में जल रही है। और भारत अपने बड़े वजूद, भारी भरकम वजूद, जोग्राफी, इकोनॉमी के बावजूद भारत जो है इर्रेलिवेंट हो गया है आज आलमी मंजर में। और जिस मुल्क को नरेंद्र मोदी आज 20-30 साल से इर्रेलिवेंट करने का, तन्हा करने का आलमी सतह पर दावा करते चले आ रहे हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा रेलिवेंट मुल्क बनकर रह गया है। और ये वो बड़े बोल हैं नरेंद्र मोदी के जो आज वो कर्मा की सूरत में आज उनके सामने आ रहे हैं कि जो वो बोला करते थे कि वह पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, पाकिस्तान के साथ राब्ता नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है और ये तन्हाई का शिकार हो गया है और दुनिया ने इसको छोड़ दिया है। तो ये सारी जो बातें हैं पलट कर आज नरेंद्र मोदी का मुंह चढ़ा रही है। नरेंद्र मोदी के सामने उनकी हर ताना जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया था वो भूत बनकर उनके दाएं बाएं नाच रहा है। और आज उनकी अपोजिशन जो है, आज वहाँ का जो आजाद दानिश्वर है, आजाद ज़मीर इंसान है, वो नरेंद्र मोदी की आज इन हरकतों पर वो एक पेचताब खा रहा है, वो तनकीद कर रहा है। पार्लियामेंट से लेकर चौराहों तक उन पर उनकी इस हिकमत अमली पर तनकीद हो रही है कि जब उनको तारीख ने मौका दिया था कि वो एक पुल का किरदार अदा करें या एक मुतवाज़न किरदार अदा करें इस तसादम में, इस कज़िये में, लेकिन उसने इस कज़िये में एक बिल्कुल जो इसको हम गाज़े बसर कहते हैं, आंखें बंद करके एक दूसरे लफ्जों में इसराइल की सहूलतकारी की कोशिश की। अब पाकिस्तान का जाहिर है, पाकिस्तान की वो अगर कहा जाए कि उस शेर की सूरत में कि तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई वो तीरगी जो मेरे नाम सियाह में थी। तो खुद यूक्रेन में मसालिहत और सहूलतकारी और अमन की बातें करने वाला रूस और यूक्रेन के दरमियान, पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका के दरमियान वो अमन कायम करने, रवाबत कायम करने, सहूलत देने की बुनियाद पर सीमा जबी होकर रह गया और उस पर अजीब व गरीब किस्म के, सूफियाना किस्म के, आमियाना किस्म के तबसरे शुरू कर दिए और इस्तिलाहात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है इस माहौल में। भारत की जो क़यादत है उसके अपने फैसले जो हैं, जो जलन में, हसद में और महज अपने पड़ोसियों को नीचा दिखाने के लिए या किसी तकब्बर और किसी बड़ाई का शिकार होने के नतीजे में या उसकी वजह से जो फैसले वो कर रहा है वो खुद उनके अंदर गिरफ्तार होता जा रहा है। तो जाहिर है कि उसे पाकिस्तान का ये किरदार कैसे भा रहा होगा कि पाकिस्तान आज दुनिया की लाइमलाइट में आ रहा है। पाकिस्तान का किरदार दाएं से भी हो रहा है, एतराफ
बड़े से भी उसके किरदार का एतराफ हो रहा है, उसकी तहसीन हो रही है। तो भारत की इस सारी सूरत हाल पर भारत की क़यादत की जो जमीनों पर शिकने उभरना, ये एक फितरी सी बात है। बहुत शुक्रिया बार साहब, आप हमारे साथ रहे, बहुत तफसीली बातचीत की। सामीन इकराम हमारे साथ थे ये आरिफ बहार साहब, दो पाक भारत ताल्लुकात के उमूर के माहिर हैं। ये बात कर रहे थे मौजूदा जो पाकिस्तान का सफारती किरदार है, आलमी अमन की कोशिशें और आलमी अमन के लिए जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, जो किरदार अदा कर रहा है, उस हवाले से बात कर रहे थे। और इसके साथ साथ हमने उसके ऊपर बात की कि पूरी दुनिया जब पाकिस्तान की गर्दिदा है और उसके किरदार की तारीफ कर रही है, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर भारत के पेट में मरोड़ क्यों पड़ रहे हैं।